So today we are going to discuss about section 34 of the Indian Penal Code 1860. Section 34 is titled as acts done by several persons in furtherance of common intention. So in this video we'll be talking everything about A to Z, almost A to Z, about what is common intention or section 34. So let's have a look at what section 34, what the words of section 34 says. So section 34, as I said, is titled acts done by several persons in furtherance of common intention. So the provision reads as, when a criminal act is done by several persons, बहुत सारे लोगों के द्वारा अगर कोई एक्ट किया जाता है, क्रिमिनल एक्ट किया जाता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, ये जो वर्ड्स हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये कहाँ ऐड किए गए थे, कब ऐड किए गए थे, इसका मीनिंग क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट्स, प्रीवी काउंसिल्स, इन्होंने इसका क्या इंटरप्रिटेशन दिया है, ये भी हम बात करेंगे। तो जब सेवरल पर्सन्स कुछ क्रिमिनल एक्ट करते हैं कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, तो ऐसे में ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल इन द सेम मैनर एज इफ he has done that act alone. यही सेक्शन 34 कहता है, यही सेक्शन 34 के वर्ड्स हैं। सो सेक्शन 34 का ये एक इंट्रोडक्शन है कि अगर कॉमन इंटेंशन, एक जैसे इंटेंशन के साथ अगर कई सारे लोग कुछ क्रिमिनल एक्ट करते हैं या फिर कुछ एक्ट करते हैं जो कि क्रिमिनल, जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड के अंदर वो एक ऑफेंस है, तो ऐसे में हर वो व्यक्ति जो उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में वो क्रिमिनल एक्ट कमिट करता है, वो ऑफेंस कमिट करता है, ईच ऑफ दैट पर्सन शैल बी लायबल इन द सेम मैनर एज इफ ही हैज डन दैट एक्ट अलोन। वो वैसे ही लायबल होगा एज इफ कि उसने वो पर्टिकुलर ऑफेंस अकेले ही किया हो। इट्स अ क्वाइट अ बिट इंट्रोडक्शन अबाउट सेक्शन 34। Moreover, let's see what is the objective of section 34. So what happens, suppose if tomorrow around 4 or 5 people come at my home, they beat me very ruthlessly. So at that particular circumstance, will I be observing or seeing while being beaten that who is that particular person who has beaten me on my face, or that particular person who has beaten me on my back or on my chest or any part of my body? No, not at all. I would be beaten ruthlessly, and at that particular circumstance or at that particular point of time, I won't be able to see or observe or witness who is that particular person who has beaten me, in which manner, in which portion of my body, and with what intensity. I won't be able to see that. But the law talks about the offense that he has committed and the punishment, the way in which each of that person who shall be liable must be given the punishment. So common intention जो section 34 है, उसका यही ऑब्जेक्ट है कि उन केसेस को अच्छे से डील करना जिन केसेस में ये डिफ़िकल्ट हो जाता है जानना कि अगर एक या दो से ज़्यादा लोग हैं तो उनका क्या कॉमन इंटेंशन रहा था, उन सब ने क्या इंटेंशन शेयर किया था एक दूसरे के साथ मुझे मारने के लिए, और जिस तरह से
जिस जिस व्यक्ति ने मुझे मारा है उस व्यक्ति के एक्ट के लिए, क्रिमिनल एक्ट के लिए, ऑफेंस के लिए वो लायबल होगा, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द facts and circumstances of the case, because section 34 moreover is a rule of evidence. section 34 criminal liability establish करता है, बट ये एक ऑफेंस नहीं है, एक प्रिंसिपल स्टैब्लिश करता है जिससे कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में पनिशमेंट दी जा सके, एक कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्रिएट की जा सके। ये कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है यहाँ पर। जैसे थेफ्ट, सपोज फॉर इंस्टेंस थेफ्ट बताता है थेफ्ट क्या होता है, मोर ओवर नेक्स्ट प्रोविजंस में वो बताता है कि थेफ्ट के लिए पनिशमेंट क्या रहेगी, बट सेक्शन 34 इज नॉट लाइक दैट। Section 34 only talks about establishing constructive liability, joint liability for all those who have shared a common intention and have done a criminal act in the furtherance of that common intention. That's it. Nothing else is in this section. So, this was an highlight of what is the objective of Section 34. Moreover, let's see whether this wording of common intention in section 34 was inserted in 1860 at the time of enactment or commencement of Indian Penal Code, or was it made or amended afterwards. So in the case of Queen versus Gora Chand Gope, this is a case of 1866 and Indian Penal Code was enacted on 2nd October 1860, and this act, I'm really sorry, this code particularly came in the year 1862. It was enforced, it came into force on 6th October 1862. Just after 4 years, in 1866, in this Queen versus Gora Chand Gope case, the Privy Council added this line, in furtherance of common intention of all. Before this case, before 1866, section 34 did not constituted this line, in furtherance of common intention of all. So if we have to understand particularly the interpretation, the purpose or the objective of this particular sentence or words in this section, in furtherance of common intention of all, we need to have a quick focus on this particular case, Queen versus Gora Chand Gope, 1866. Moreover, the principle which is laid down in section 34 is, as I said, is a rule of evidence, and this section does not lay down any kind of substantive offense. Section 34 creates a constructive liability. It talks about common intention. Common intention is when two or more persons shares an intention which is common. All right. That is why it is common. Something happens to be common or can be called as common when more than two person shares that thing commonly. Okay, all right. For that purpose, the common word is used. I am talking in general sense, not in this particular section. Something is called to be common when two or more persons shares that thing commonly. That is why that particular thing can be called as common. So intention is common when two or more person shares that particular intention. They have a prior concert, they have a prior meeting of minds. All right. So firstly, let's talk about the elements of section 34. So as we have discussed, section 34 says when a criminal act is done by several persons. So first element of section 34 is there must be a criminal act done. By whom?
Here comes the second element of section 34, by several persons and in furtherance of common intention. So by the word common intention we can derive that several persons can be interpreted with at least presence of two persons, because anything, as I said, can be called as common when there are at least two persons. So therefore several persons can be interpreted as there must be a criminal act done by two or more persons. All right, this is the second element. There must be presence of two or more persons, then only this particular section can be implemented. All right, the third element we have in furtherance of common intention. So in furtherance of common intention, this particular line, as I said, was enacted in 1866. These words were not enacted at the time of enactment of Indian Penal Code, in the very starting time of this particular code. These words were amended afterwards. All right. So in furtherance of common intention means कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में वो क्रिमिनल एक्ट किया जाना चाहिए सेवरल पर्सन, मतलब दो या दो व्यक्ति से ज्यादा के द्वारा. सो सेक्शन 34 में जो वर्ड है कॉमन इंटेंशन, इसका मतलब ये है कि इंटेंशन जो है वो कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए सारे दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में. मोर ओवर इस कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में कोई चीज फर्दरेंस में कब आती है? फर्दरेंस वर्ड जो है इसका इंटरप्रिटेशन एक केस लॉ में किया गया था, और फर्दरेंस का कोर्ट ने मतलब बताया था कि कुछ चीज को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ावा देने के लिए. तो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में मतलब कॉमन इंटेंशन को बढ़ावा देने के लिए वो क्रिमिनल एक्ट किया जाना चाहिए. मतलब कॉमन इंटेंशन जो है वो एक प्रायरली क्रिएट हो गया है, उस क्रिमिनल एक्ट के करने के पहले ही क्रिएट हो गया है, तभी यहाँ पर वर्ड है फर्दरेंस. फर्दरेंस मीन्स कुछ चीज को इम्प्लीमेंट, कुछ चीज को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए. तो उस कॉमन इंटेंशन को बढ़ावा देने के लिए जब सेवरल पर्सन्स कुछ क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो वहां पर सेक्शन 34 एनेक्ट कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए. सो सेक्शन 34 में जो थर्ड एलिमेंट है वो है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स. देयर मस्ट बी प्रायर कंसर्ट बिटवीन दो सेवरल पर्सन्स. दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए जो कि उसके फर्दरेंस में क्रिमिनल एक्ट किया जाए. ऑलराइट, तो जो कॉमन इंटेंशन है वो एक पहले ही क्रिमिनल एक्ट करने के पहले ही इस्टेब्लिश होना जरूरी है. मोर ओवर द फोर्थ एलिमेंट वी हैव is participation of those several persons. Participation बहुत यहाँ पर necessary है, and moreover active participation. All right. Suppose, for instance, to understand the words that we are talking about just right now, let's take an example. Suppose there is a Garba night, Garba Dandiya. We play Dandiya during Diwali months. So गरबा नाइट में मैं जाता हूँ और मैं डांस नहीं करता हूँ. सो सडनली मेरे 4 फ्रेंड्स आते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे डांसिंग स्टेज पर ले जाते हैं. सो ऐसे में मैं स्टेज पर चले तो जाता हूँ बट मैं डांस नहीं करता हूँ. मैं वहाँ से भी साइड हट जाता हूँ और मैं थोड़ा बहुत ऐसे हिल डुल लेता हूँ. तो वहाँ पर कहा जाएगा कि मैंने पार्टिसिपेट किया गरबा नाइट में, बट ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट कब करूँगा? जब उन मेरे दोस्तों के बिना बुलाने पर भी मैं गरबा नाइट में स्टेज पर जाऊं और मैं अच्छे से डांस करूं, वॉलंटरीली डांस करूँगा, तो वहाँ पर कहा जाएगा कि मैंने गरबा नाइट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है. तो सेक्शन 34 में अगर क्रिमिनल एक्ट किया जाता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन,
तो वहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। मियरली फिजिकल प्रेजेंस अगर कोई अक्यूज का होता है तो उससे ये डिराइव नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पर सेक्शन 34 एक्टिवेट होता है उस पर्टिकुलर अक्यूज पे जिसका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस था और कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। बिकॉज physical presence cannot be construed as a sine qua non. It's not at all an essential element. It's not at all an essential condition. Alright. So, ये थे elements of section 34. Next, what we have is case laws. There are 3 leading case laws relating to section 34. First is Barendra Kumar Ghosh versus King Emperor. This case is also known as postmaster case. We call as this postmaster case. All right, postmaster case. So in postmaster case, let me see whether recording is being done or not. Yes, it's being done. So in postmaster case, what happens is कि एक अक्यूज रहता है, वो पोस्ट ऑफिस में जब रॉबरी या डकॉयटी की जाती है तो वो पर्टिकुलर अक्यूज बाहर खड़े रहता है ये नोटिस करने के लिए कि पुलिस या फिर ऐसे कोई रुकावट तो नहीं आए उनके डकॉयटी के टाइम पे। And at the time of being a watchman outside the post office, he was handed with a gun. He was armed with this gun things. So ये कंस्ट्रूट किया गया इसमें कि उसका वहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन था बिकॉज उसके हाथ में गन थी एंड उनका पहले से ही प्रायर कॉन्सर्ट था। कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में ही उन्होंने एक्ट किया। दैट इज वाई वो जो अक्यूज जो बाहर निगरानी करने खड़ा था उसके ऊपर भी सेक्शन 34 एक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सेक्शन 34 में वो भी इक्वली लायबल रहेगा उसी तरह एज इफ कि उसने पोस्ट ऑफिस में डकॉयटी अकेले की हो या रॉबरी अकेले की हो। ऑलराइट, बिकॉज डकॉयटी इज ऑल्सो अ रॉबरी बट विथ मोर देन 5 और मोर देन 5 पीपल। ऑलराइट, सो ये 3 लीडिंग केसेस में से एक लीडिंग केस ये हो गया बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। मोर ओवर सेकेंड केस वॉज महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर एंड द थर्ड केस वॉज पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955। कई जगह पर लाइक एज इन द जजमेंट ऑफ दिस केस वहाँ पर है पांडुरंग तुकिया बिलिया वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद बिकॉज वहाँ पर 3 अक्यूज थे जिन्होंने अपीलेट कोर्ट में अपील डाली थी। ऑल्दो इनिशियली देयर वर 5 अक्यूज बट 2 को कन्विक्ट कर दिया, 5 को कन्विक्ट कर दिया गया था बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मोर ओवर उनमें से 3 जो थे पांडुरंग तुकिया बिलिया, दीज 3 अक्यूज दे अपील्ड इन द अपीलेट कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी उनकी जो कन्विक्शन है उसको अपहेल्ड किया। Moreover, they went into appealed in the Supreme Court of India, which is the highest appellate authority. And in Supreme Court, the Supreme Court held कि वहाँ पर सेक्शन 34 अप्लाई होने के लिए प्रायर कॉन्सर्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। सो इस केस में देखा गया कि पांडुरंग तुकिया भिलिया जो कि 3 अक्यूज जिन्होंने अपील की थी उनका पर्टिकुलर बेसिस पे कितना एक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया था जिससे कि ऑफेंस कमिट हुआ। तो इनिशियली 5 अक्यूज को तो कन्विक्शन दिया गया था अंडर सेक्शन 302 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हेल्डिंग दी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में ये भी कहा, ये भी हेल्ड किया कि यहाँ पर पांडुरंग तुकिया बिलिया में से एक जो पांडुरंग है उसके पर्टिकुलर एक्ट की वजह से ही विक्टिम की डेथ हुई थी एंड दैट इज वाई उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए वो लायबल होगा, दूसरे लायबल नहीं होंगे, बट दूसरे अपने अपने एक्ट के लिए लायबल होंगे।
फॉर इंस्टेंस तो पांडुरंग भिलिया तुकिया, राइट, भिलिया और तुकिया ने ग्रीवियस हर्ट ही किया था, तो इसलिए उनके ऊपर सेक्शन 325 लगा, सेक्शन 302 नहीं लगा। बट इनिशियली वहां पर उनकी जॉइंट लाइबिलिटी भी थी, बिकॉज दे हैड अ प्रायर कॉन्सेप्ट, दे हैड अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। सो ये जो केस है ये बहुत ही लीडिंग केस है और रिसेंट केस है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस केस है, 1947 के बाद का केस है। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस, दिस केस वाज दिस केस केम इन 1955। ओके, तो यहाँ पर ये 3 केस लॉज हैं, एंड दीज 3 केस लॉज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमन इंटेंशन और सेक्शन 34। मोर ओवर कोर्ट्स जो हैं उन्हें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं ये, कि कोर्ट्स जो हैं उन्हें कॉमन इंटेंशन और मेंस रिया को अलग अलग रखना चाहिए, बिकॉज कॉमन इंटेंशन की जब बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेवरल पर्सन्स, 2 or more than 2 persons, and that is why intention is common there. But when we are talking about mens rea is merely an individual's guilty mind. It does not talks about or can be interpreted as or can be construed as talking about more than an individual. Mens rea merely talks about an individual. और सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन है उसमें मेंस रिया, जो कि एक टर्म है जो कि एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ की जाती है, उसमें नहीं ला सकते हैं, बिकॉज सेक्शन 34 में अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही कन्विक्ट किए जाएं। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, एज आई सेड, सेक्शन 34 रूल ऑफ एविडेंस है, तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जिसकी जितनी लाइबिलिटी बनेगी वो उतने पार्ट के लिए लायबल होगा। और मोर ओवर अगर वहाँ पर कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में हो रहा है तो वो सारे ही उतने ही एक्ट के लिए इक्विवेलेंटली लायबल होंगे। इट्स जस्ट दैट, नथिंग एल्स। सो मेंस रिया और कॉमन इंटेंशन को अलग अलग रखना चाहिए। मोर ओवर कॉमन इंटेंशन जो है उसे प्रूव कैसे किया जाए, सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट पॉइंट टू बी एस्टैब्लिश्ड और टू बी प्रूव्ड, because intention is very difficult to be proved, because intention is made in this area of a body, mind, which is difficult to be read. So intention can be construed by observing or by watching the act of accused, or act, any overt act or any act shows our intention behind doing that act. So intention, common intention establish करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा accused जो भी होंगे जिनके ऊपर सेक्शन 34 इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उनमें ये देखा जाएगा कि उन सब का एक्ट क्या था, उसके बेसिस पे कॉमन इंटेंशन establish किया जाएगा। ऑलराइट, सपोज फॉर एन इंस्टेंस, फॉर एन एग्जाम्पल, 4 अक्यूज हैं जिनमें से 3 अक्यूज जाते हैं चोरी करने अंधेरे में, और 4th अक्यूज जो है उसको ये काम दिया जाता है, प्रायर कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली इनके बीच में रहता है, 4th अक्यूज को काम दिया जाता है कि एक हेलोजन जो है उसका लाइट फोकस सिर्फ और सिर्फ वहीं रखें जहाँ पर वो बाकी के 3 अक्यूज चोरी कर रहे हैं, बिकॉज ये जो चोरी हो रही है डार्क एरिया में हो रही है। तो यहाँ पर 4th अक्यूज जो लाइट दे रहा है वहाँ पर उसके एक्ट से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर चारों का प्रायर कॉन्सेप्ट है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है और उनका कॉमन इंटेंशन है। तभी तो जो 4th अक्यूज है वो जो फोकस लाइट है वो वहीं पर दे रहा है जहाँ पर चोरी होनी चाहिए या हो रही है। सो ऐसे में प्रूव किया जाता है कि कॉमन इंटेंशन है, एक्ट से प्रूव किया जाता है, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे प्रूव किया जाता है कॉमन इंटेंशन। ऑलराइट, सो दिस वाज सेक्शन 34. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। थैंक यू, नमस्कार।